Hello, children. Welcome to science class. This is your chapter 9, The Living Organisms, Characteristics and Habitats, part 2. As you know, in the previous part of this chapter, we have already discussed about the organism, habitat, adaptation, terrestrial habitat. But in this part, we are going to know about the aquatic habitat and some important features that can differentiate between living and non-living things. So let's begin the chapter. Some aquatic habitats. The habitat that contains water. It means the plants and animals that live in water is called aquatic habitat. Aqua means water. So, the place of water, the place where animal and plants live in the water, that is called the aquatic habitat. Examples: ocean, sea, ponds, lakes, rivers, all these are aquatic habitats, and we can see different types of plants and animals in the water also. Now you can see here, for example, the plants. They are of different type. Some of the plants you see here are on the water. It means they can float on the water easily. Some of the plants are fixed in the ground in the water, but their leaves float on the water surface. Some of the plants are completely submerged in water. So what are some adaptations that make these organisms to live in the water? This is aquatic habitat, ocean. Let's know about some of the animals first. What is special about these aquatic animals? These animals, you can see, have a specific or special body shape. This type of body shape is called streamline body shape or boat shape body, which helps them to move in water. Another important feature, that is the presence of gills. So let's see how these adaptations help these animals. Streamlined body shape. Bodies of most aquatic animals are streamlined. A streamlined body क्या होती है? Streamlined body shape is the one that is narrow at both ends. आप देख सकते हो कि दोनों ends पर narrow होती है, लेकिन बीच में ये broad हो जाती है, in the middle. So this type of body is called as streamlined body. This shape enables the animals to swim faster in the water. तो ये जो shape होता है body का, ये पानी में easily movement में help देता है. वाटर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है. These animals need to swim fast to catch their prey or swim away from predators to avoid being eaten. So this shape helps them. Example: fish, penguin, dolphin, etc. Octopus-like animals do not have streamlined body to stay deep in ocean, but when moving, they make a streamlined motion. Whales have blowholes instead of gills. We will discuss this character in the later part. In the later, octopus जैसे एनिमल या स्क्विड अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस तरह के एनिमल की जो बॉडी शेप होती है ये स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, लेकिन जब वो मूवमेंट करते हैं उनका मूवमेंट एक तरह से स्ट्रीमलाइन होता है जो उनको वाटर में ईजिली आगे बढ़ने में हेल्प करता है. एडेप्टेशंस फॉर ब्रीदिंग इन वाटर. अब लैंड पर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें उनकी बॉडी क्योंकि एयर से ऑक्सीजन को अपनी ब्रीदिंग में यूज़ करती है और उसके लिए उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं. बट जो एनिमल्स प्लांट के अंदर सर्वाइव करते हैं they have different type of breathing organs or breathing parts.
because they need to breathe oxygen that is dissolved in water. So they have gills, they may have gills, gill chambers, skin, air tube, air bubbles, special nostrils, or blowhole. So these are some of the important breathing parts in the different animals that are found in water. Let's know about some of these. Gills. Fish have, gills to breathe in water. Fish are able to breathe underwater with the help of gills that are special organs. गिल्स आर प्रेजेंट अंडर द स्किन ऑफ फिशेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर स्किन है और उसके नीचे ये क्या बने हैं, ये फिश के गिल्स हैं. एंड दीज आर कवर्ड बाय बोनी कवर विच इज़ कॉल्ड एज ऑपरकुलम. इसे ऑपरकुलम कहते हैं और इसके नीचे ये फिश के गिल्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग starts when the fish gulps water through its mouth. The water then passes through the feathery filaments of the fish gill. जब फिश वाटर अपने मुंह के अंदर लेती है तो इस वाटर से जो ऑक्सीजन होती है वो गिल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन वाटर को वहाँ से वो निकाल देती हैं. इट मीन्स वाटर को जाने देती हैं, लेकिन जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड देन ब्लड स्ट्रीम में जा कर के मिल जाते हैं, जिससे वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाती है. ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स इज सीन इन ऑलमोस्ट ऑल एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिशेस, क्रैब्स, ऑक्टोपस. सभी एक्वेटिक एनिमल्स में ज़्यादातर गिल्स होते हैं. स्पेशल नॉस्ट्रिल्स. लेकिन कुछ मैमल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नॉस्ट्रिल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सील में ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रिल्स होते हैं. नॉस्ट्रिल्स आर स्मॉल होल्स, छोटे होल्स होते हैं आगे की तरफ, और उनको वो रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं. ब्लो होल्स आर ऑल्सो सम स्पेशल पार्ट्स इन द एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल. जैसे कि आप यहाँ पर एक ये देख रहे हैं होल, यहाँ से ये ब्रीदिंग करती हैं. एनिमल्स इन पॉन्ड्स एंड लेक्स. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग. आप जानते हो कि फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो लैंड पर भी सर्वाइव कर सकता है एंड इट ऑल्सो कैन सर्वाइव इन वाटर. सो व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स दैट मेक दिस एनिमल टू सर्वाइव इन वाटर? इट कैन ब्रीद इन वाटर एंड लैंड. दोनों पर ये ब्रीद कर सकता है. इसके लिए लैंड में ब्रीथ करने के लिए लंग्स होते हैं, बट इट कैन ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ स्किन इन द वाटर. इनके वेब्ड फीट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. इस तरह की जो फीट होते हैं इसको हम वेब्ड फीट होते हैं. ये पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं. इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं या बैक लेग्स होते हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग. ये इनको लीप लेने में, जंप करने में हेल्प करते हैं. और इनकी एक लंबी ये स्टिकी टंग होती है जो इंसेक्ट्स को कैच करने में हेल्प करती है. Some of these are the adaptations that help a frog to live in land and also in water. Now let's see adaptations in aquatic plants. As I have already told you, the plants that are found in water are of three types. What are these? Floating plants, fixed plants, submerged or underwater plants. What are the floating plants? Floating plants are those that can float on the water. These have very short roots. Means roots are not fixed to the ground in the or soil in water. Submerged, partly submerged plants like lotus. These are the plants that are fixed. They have fixed roots in the soil, in water, but they are partly floated. Their leaves and flower are floated on the water surface. Aquatic plants do not depend on their roots for absorption of water and minerals. Water and minerals can be absorbed directly from surface of leaves, branches and stem. Thus aquatic plants are very small
and short roots, and their main function is to hold the plant in place. तो aquatic plants अपनी रूट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? वाटर एंड मिनरल्स के लिए. क्यों? क्योंकि ये पानी में ही होते हैं, तो रूट्स का फंक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है. वो सिर्फ उनको सपोर्ट देने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए ही रूट्स होती हैं इनके पानी में, और बहुत शॉर्ट होती हैं. बाकी वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इनकी बॉडी की सरफेस से हो सकता है, ईजिली हो जाता है. जैसे स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है, सभी तरफ से होता है. तो इसलिए रूट का एब्जॉर्प्शन में कोई रोल नहीं है यहाँ पर वाटर प्लांट्स में. द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. कैसी होती हैं स्टेम्स? स्टेम्स लंबी होती हैं, बीच में खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं जिसमें एयर फिल रहती है, और इसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट वेट होती है, सो दैट इट कैन बी बेंट विद द फ्लो ऑफ वाटर. तो जैसे पानी फ्लो हो करता है, ये उस डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं ईजिली, एंड आर नॉट डैमेज बाय वाटर करंट्स. तो पानी का जैसे जैसे बहाव होता है, अगर पानी तेज़ चल रहा है तो ये उस डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं और अपने आप को ये बचा लेती हैं. अगर ये स्टेम्स लाइट वेट नहीं होंगी, रिजिड होंगी, तो तेज़ बहाव की वजह से ये स्टेम्स डैमेज हो सकती हैं, टूट सकती हैं. सो दैट्स वाई उनकी बॉडी वेट, उनकी स्टेम्स हॉलो होती हैं, लाइट होती हैं. सम एक्वेटिक प्लांट्स आर टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल टेप ग्रास. टेप ग्रास पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है पूरी तरह से. ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, एंड सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. कैसी होती हैं लीव्स? थिन होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, एंड ईजिली बेंड कर जाती हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर. लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड. लीव्स कैसी होती हैं? डिवाइडेड होती हैं, डाइसेक्टेड होती हैं, जिससे उनके बीच से पानी ईजिली क्रॉस कर जाए विदाउट डैमेजिंग देम. यहाँ पर आप देख सकते हो लीव्स कैसी हैं, स्टेम्स कैसी हैं, इनकी हॉलो हैं, और बीच में इनके एयर स्पेस एयर फिल होती है. So, these are some important features or adaptation that are seen in aquatic plants and animals. Now, you know that there are so many things in our surrounding. We can see some living, like different kinds of plants, animals, and also we see so many non-living things like chair, table, stone, coin, or so many. But how can you differentiate between these? कैसे हम differentiate करेंगे कि ये particular चीज़, particular thing living है या non-living? We must know about their features so that we can differentiate them. Let us know about what are these special features that can differentiate these plants, animals with the non-living. Do all organisms need food? क्या सभी एनिमल्स को फूड चाहिए? Yes, of course. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जिंदा रहने के लिए उन्हें खाने की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि खाने से उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. खाने से उन्हें ऐसे कंपोनेंट्स बॉडी में उनके जाते हैं जो उनकी बॉडी को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं. सो एवरी लिविंग बीइंग नीड फूड टू सर्वाइव. सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? यस. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स दो तरीके से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग वंस. जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी बेबीज़ को बॉर्न करते हैं. इसके अलावा जो एनिमल्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सब क्या करते हैं? ये सब एग्स देते हैं. लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है, एज के साथ साथ इनकी बॉडी में डेवलपमेंट होता है, ये ग्रो करते हैं. जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे इन्फेंट बेबी जब पैदा होता है तो उसकी ग्रोथ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होती है.
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है डेवलपमेंट, वो हाइट में ग्रो करता है, साइज में ग्रो करता है, वेट में ग्रो करता है, एंड देन अल्टीमेटली इट बिकम्स अ कम्प्लीटली मेच्योर्ड मैन। इसी तरीके से हम एनिमल्स में भी देख सकते हैं। बर्ड्स जितने भी हैं या अदर एनिमल्स एग्स ले करते हैं, एग्स की हैचिंग होती है, बेबीज आते हैं, एंड दे ग्रो इन साइज, दे बिकम बिगर एंड बिगर like their parents. So all the organisms show growth. Do all organisms respire? क्या सभी एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं? रेस्पिरेशन, कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं? नो। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, हम सबको जिंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है और सभी को ऑक्सीजन लेनी होती है जिंदा रहने के लिए। सो ब्रीदिंग इज वॉट एंड रेस्पिरेशन इज वॉट? ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हम सांस इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, दैट इज द ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन, इट इज़ अ कम्प्लीटली केमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है, इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व। इन रेस्पिरेशन द फूड that we eat is oxidized or it is broken down in simpler forms with the help of oxygen. So what is respiration? Respiration is the breakdown of food in the presence of oxygen. With that, energy is released. So this whole process is called respiration. After breaking down of food, we get the energy. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. Humans के जैसे ही सिमिलर होते हैं इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस, एंड रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं लाइक अर्थवर्म में लंग्स नहीं होते हैं, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन। ऐसे ही डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में 8 ट्यूब्स होती हैं, एंड इसी तरह से प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन उनके ऑर्गन्स ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट? क्या सभी एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी से जो वेस्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस में कुछ वेस्ट इकट्ठा हो जाता है और इस वेस्ट को बाहर निकालना ज़रूरी है. सो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. उनमें, उनकी बॉडी में ये फीचर्स नहीं होते हैं. क्या टेबल चेयर में कभी आपने देखा है कि वो ब्रीदिंग करते हैं या उन्हें खाना चाहिए या मूवमेंट करते हैं अपने आप से? नो, नॉट एट ऑल. तो इसी तरह से उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन भी नहीं होता है. सभी एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑल द एनिमल्स रिप्रोड्यूस. बेबीज़ बॉर्न होते हैं पेरेंट्स से. ऐसे ही जितने भी अभी ह्यूमन बींग्स के अलावा अदर एनिमल्स हैं, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, सभी रिप्रोड्यूस करते हैं. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड. अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स को बनाना इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से उनकी जनरेशन मेंटेन रहती है एंड दे कैन कंटिन्यू देयर लाइफ ऑन द अर्थ. सो एवरी लिविंग बीइंग नीड टू रिप्रोड्यूस, बट नॉन लिविंग डज नॉट डू दिस. प्लांट्स में हम देखते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स स्टेम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं. Some of the plants can grow with the help of leaves or buds
सो वेरियस मेथड्स आर देयर टू रिप्रोड्यूस, लेकिन रिप्रोडक्शन सभी में होता है. डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? यस ऑफ कोर्स, ऑल द ऑर्गेनिजम्स मूव. हम एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा सकते हैं, अपने आप जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें अपने नेसेसिटीज़ को पूरा करना है. हमें खाने की ज़रूरत है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो इन सब के लिए हमें क्या करना है? हमें मूवमेंट करना है. लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं करते हैं, बट इवन देन दे शो अ लिटिल बिट सम मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे माइमोसा का एक प्लांट होता है, अगर आप उनकी लीव्स को टच करते हैं तो वो लीव्स बंद हो जाती हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट. प्लांट की जो ग्रोथ होती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, एंड जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है जिसे हम शूट कहते हैं, इट ग्रोस अपवर्ड. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मूवमेंट, लेकिन वो एक ही जगह पर रह करके होती है. whereas other animals, they move from one place to another. So all the organisms move, whereas non-living things do not move their own. अपने आप वो मूव नहीं कर सकते हैं. So these are some of the important features that living beings show but non-living things do not show. लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जो लिविंग थिंग्स के जैसे कुछ कैरेक्टर्स शो करते हैं, लाइक क्लाउड्स, लाइक मून या प्लैनेट्स. आप जानते हो क्लाउड मूव करते हैं अपने आप एंड दे ग्रो इन साइज. इसी तरह से प्लैनेट्स मूव करते हैं, मून मूव करता है. लेकिन क्या हम उन्हें फिर लिविंग बीइंग्स कह सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. वी कैन नॉट कॉल देम लिविंग बीइंग्स. क्यों? क्योंकि अगर कोई लिविंग बीइंग है तो लाइफ प्रोसेस, एग्जाम्पल फीडिंग, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सभी प्रोसेस होने ज़रूरी हैं, तभी हम उन्हें लिविंग बीइंग कह सकते हैं. अदरवाइज दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. So we can say that if a thing has a thing which can breathe, which can eat food, or which can make food, like plants, excrete, respire, reproduce, then they are called as living things. Otherwise they are not living. So what then is life? हम लाइफ किसे कहेंगे? लाइफ इज़ अ साइकिल. जब एक बेबी बॉर्न होता है, लाइफ के सभी प्रोसेस कंप्लीट करता है, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज इट डाइज. तो सब लाइफ के सभी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए ये जो साइकिल चलता है, दिस इज़ द लाइफ साइकिल, एंड इट गोज़ ऑन, इट इज़ कंटिन्यूड ऑन द प्लैनेट. So this is all this is the chapter about living, non-living or habitat, and that's it in this chapter. So thank you children, and revise the topic. Thanks for watching.